students. Today I'm doing exercise number 9.3. It's question number 1. But for question number 1 you should know what is midpoint formula. Okay, so here is your topic 9.3, which is at page number 178. It's midpoint formula. Okay, here is the derivation. You people have to write this derivation on your neat notebooks. Okay, and I forgot to write its question. You just write over here the question that derive midpoint formula. Okay, पेपर में इस किस्म का आ सकता है आपके पास क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ दे देंगे और मिड पॉइंट फार्मूला का यू शुड नो नाउ लाइक डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह से हमने किया था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला भी है मेरे पास. Let's suppose I have this P1, my first point. I have 2 points. Okay, this is P1 x1 y1 and this is P2 x2 y2. इनको मैंने ये नेम्स दे दिए हैं. I have to find midpoint of P1 and P2 and I name that midpoint as R of x comma y. So I have to find the value of this midpoint R of x y. ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि हमने midpoint formula निकालना है. So for this students, what I have done or what I have written over here, the simple this explanation, like let P of P1 x1 y1 and P2 x2 y2 be any 2 points in the plane and R x y be the midpoints P1 and P2 on P2. ठीक है, जो R x y है ये midpoint है P1 और P2 का on the line segment P1 P2, right? ये line segment I join P1 and P2 and it becomes a line segment. ठीक है, that is why I put this symbol P1 P2. It's a line segment. अब यहाँ पर ये R of x y इस line segment पे midpoint था. Now students, फिर next मैंने क्या किया है, through this midpoint R I draw a parallel line segment. This line segment MN which is parallel to this x axis. ठीक है, ये आप देख लें मैंने क्या किया, through R, through this midpoint draw MN which is parallel to x axis. Okay, अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास ऑब्वियसली सो दैट ये मेरे पास जो है इस MN का मिड पॉइंट भी बन जाएगा. दिस R of x y इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. इसको लेके हम प्रूफ करेंगे अपना मिड पॉइंट फार्मूला. ओके, इसकी डेरिवेशन बाय यूजिंग दिस. सो स्टूडेंट्स सिंपली आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, दिस डिस्टेंस. अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, इनको इक्वेट करके और इक्वल करके आई कैन डिराइव इट्स फार्मूला. सो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट एम आर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखें as we have done previously that I draw perpendicular from this P1 on x-axis, again this n from this P2 on x-axis. मैंने perpendiculars draw कर लिए थे, मैं repeat कर देती हूँ. P1 and P2, these are my 2 points and I join them to form a line segment P1 P2. Next what I have done, I draw perpendicular from point P1 on x-axis and from point P2 on again x-axis. Then students, I have a midpoint and I name this midpoint as R of x y, which is midpoint of P1 and P2. From this point I also draw a perpendicular on x-axis. So I have 3 perpendiculars on x-axis. Then students, from R I draw a straight line segment MN which is parallel to this x-axis. Okay, next I am going to calculate this distance. That is, if मुझे ये distance मिल जाए, this distance, ठीक है, ये मैं क्रॉस बना रही हूँ, then it will be equal to this distance. ठीक है, similarly this distance will be equal to this because these are parallel. तो वहाँ से हम equal कर लेंगे by using line segment concept. ठीक है, line segment का mid point जो है obviously divide करेगा bisector उसको into 2 equal parts. So students, if my this distance is x1, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एंड दिस टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है. सो व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये जो टू क्रॉसेस हैं, दिस डिस्टेंस बिकम्स x माइनस x1. इस टोटल में से आपने टोटल x था उसमें से ये डिस्टेंस माइनस किया है, सो इट बिकम्स x माइनस x1. ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि मैंने यहाँ पर क्या किया है. हाउ आई गॉट दिस वैल्यू x माइनस x1. यहाँ तक x1 है, टोटल x है, तो टोटल में से मैंने ये नोन माइनस किया. देन स्टूडेंट्स कम टू दिस पार्ट. इसमें भी यही है हमारे पास कि
मैंने यहाँ पर दिस डिस्टेंस इज़ x, राइट. यहाँ ऑरिजिन से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट ये x है, एंड फ्रॉम ऑरिजिन टिल दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज़ x2. ओके. Right. So this distance from origin is x2 and this distance from origin is x. So what about this distance? ये जो मेरे पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल x2 में से आपने ये x माइनस कर लिया, x2 माइनस sorry x1 नहीं, sorry x I name it as x. I have already given this name. This is the coordinate x coordinate of midpoint, ठीक है. इसको मैंने माइनस कर लिया. सो क्या किया स्टूडेंट्स, इस टोटल x2 में से आपने दिस x को माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस डिस्टेंस, राइट. तो ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, इफ़ एम एन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैन इट हैज़ मिड पॉइंट आर ऑफ एक्स वाई, और थ्रू आर ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. सो दैट आर एक्स वाई इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ दिस एम एन, ठीक है. ये देखिए लाइन बाइसेक्टर बन रहा है. ये दिस पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है दिस लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, लाइक ये जो आर एक्स वाई P1 और P2 को भी डिवाइड कर रहा था. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या आएगा मेरे पास, वेरी सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला. ये लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपली सो मैंने जहाँ तक लिखा था, सो क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट कि दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है m to r, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दिस r इंटू n. तो यहाँ पर ये डिस्टेंस किसके इक्वल था, x माइनस x1, तो ये भी x माइनस x1 इज़ इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, ठीक है. ये आपके पास पैरेलल है तो r इंटू n x2 माइनस हमारे पास क्या आ रहा था, x2 माइनस x. ओके. x minus x1 is equals to x2 minus x. So I have to find the value of x. मुझे x चाहिए, ठीक है, x coordinate. So x like terms arrange कर लेते हैं. Minus x when you shift on this side it becomes plus x. x2 minus to the other side when I shift it becomes x1. So 2x is equals to x1 plus x2. यहाँ पर मैंने arrange कर लिया. You can write x2 plus x1 और x1 plus x2. सो x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2. ये तो हमने निकाल लिया है मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है. देन सिमिलरली स्टूडेंट्स, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, बस सिमिलरली के लिए इफ़ x इज़ सम ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 डिवाइड बाय, देन ऑब्वियसली y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 divided by 2. So this is your y coordinate. Therefore the point हमारे पास जो मिड पॉइंट बन रहा है, मिड पॉइंट भी मैं लिख लेती हूँ. मिड पॉइंट क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, therefore मिड पॉइंट को हमने क्या नेम दिया था, r of x, y. ये मिड पॉइंट था मेरे पास, ठीक है. दिस वाज r of x y किसके इक्वल आ जाएगा, r of what is value of x जो भी हमने निकाली है वो वैल्यू थी x1 प्लस x2 बाई 2 एंड वैल्यू ऑफ y क्या थी, y1 प्लस y2 बाई 2. ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं. सो दिस इज रिक्वायर्ड मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स थे हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स P1 x1 comma y1 and P2 x2 comma y2. So whenever you have any 2 points, ठीक है, एक x1 y1 है x2 y2, तो उनका मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे एंड y कोऑर्डिनेट्स को उनके ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट. ओके, आई होप स्टूडेंट्स से आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स exercise 9.3 which is at page number 183. I am reading its question number 1. Its question number 1 is find the midpoint of the line segment joining each of the following pairs of points. They have given you 2 points and they asked to find midpoint. As you know, midpoint formula is very simple. It's coordinate
in solution, obviously, students, first you have to write its midpoint. So you will start it like let r of x comma y be the required midpoint. Okay, then students, with blue marker write down its formula. R of xy is equals to r of x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. This is midpoint. Okay, midpoint. So just put values in this formula. So r of x comma y. Okay students, as you know, this one is your x1. मैं green marker से लिख के बता देती हूँ. This is your uh, this is x1, right? This is y1, this is x2 and this is y2. Like in 9.1, in 9.2 आपने बहुत बार किया है that this element is your x1, this is second element, it is y1, और second coordinate के elements जो हैं हमको x2 and y2 कहेंगे. So I am not explaining here too much, and I am not writing here that here x1 is this, y1 is this, x2 is this, y2 is this. You can write yourself, but I am just applying here direct formula. Okay, तो just put the values. Putting values करें आप. कौन कौन सी values आपने put करनी थी x1 की. This is x1, this is x2. ठीक है, x coordinates you will add x coordinate. ये भी x और ये भी x, दोनों के x coordinates add करने हैं and divided by 2. Then दोनों के आपने y coordinates add करने हैं and divided by 2. ठीक है, 2 plus 2 divided by 2. So r of x comma y is equals to r of 9 plus 7 हमारे पास students क्या होगा 16 by 2 and 4 by 2. So r of x comma y is equals to r of 8 comma 2. So hence this is your required midpoint of given pair of points, right? I'm again doing one more part. It's a D part. I'm not doing its B and C part. They are very simple. D part में students मुझे negative numbers नज़र आ रहे थे, elements coordinates नज़र आ रहे थे. So that's why I'm doing its D part. Again in solution, obviously you will write let r of x comma y be the required midpoint. Then आप लिख लें with blue marker. R1 आपके पास क्या है, sorry R. What is coordinate of x हम कैसे हमने find out किया था, x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. So this is about midpoint formula. Just x coordinates add करें and y coordinates add करें, nothing else. Right students? X. Okay, here as you know this one is your x1, this is y1, this is x2 and this is y2. So what I'm going to do, I'm just putting values of x1 and x2 और दोनों coordinates. -4, this is -4 and plus -4 डाल लें. ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. आप लोग प्लस डाल के, प्लस इज फॉर्मूलस साइन, और अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली यू नो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 अगर बीच में नेगेटिव साइन होता लाइक इन डिस्टेंस फार्मूला तो येस देयर इज़ अ बिग चेंज आफ्टर साइन. तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की वजह से देयर विल बी नो चेंज ऑन दिस सेकंड एलिमेंट. सो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है. इट्स टोटली अप टू यू. प्लस साइन डाल दें या डायरेक्ट -4 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये क्या आ गया था 9 प्लस -3/2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप नहीं ये लिखना चाहते तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर लिखते हैं 9 -3/2. इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है. ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट,
और आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं. सो ये क्या आ जाएगा, आर ऑफ -8/2 एंड 9 - 3 मेरे पास क्या होता है, इट्स 6/2 -4 and 3. -4 and 3. So this is my required midpoint of given pairs of points. ठीक है, तो ये हमने कर लिया हमारे पास. नेक्स्ट एक और मैं आपके लिए पार्ट कर देती हूँ. मैं देखती हूँ इनमें से कौन सा पार्ट मैं कर लूँ. हम पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर. राइट, ई पार्ट इज़ सिंपल. अगर हम इसका डी पार्ट एफ पार्ट कर लें, एफ कर लें या ई कर लेते हैं, बोथ आर सिंपल स्टूडेंट्स. ज़ीरो है, चलो ज़ीरो में आप कंफ्यूज ना हो. सो आई एम डूइंग इट्स एफ पार्ट. In case if you have 0 0 as your x and y coordinates, so I'm doing its f part. Okay, so in solution you will again write that let this be the required midpoint. ये required midpoint है. Putting values कर लें, हम values put करते हैं. ये आपके पास x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay, values put कर लें students. x, y, oops, मैंने blue यूज़ कर ली. x1, this is x1, this is x2, 0 + 0/2. This is y1, 0, this is y2. You can write it as 0 - 5/2, ऐसे भी लिख सकते हैं. और नहीं करना चाहती तो 0 + × -5 ऐसे भी कर लें. तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आप 0 + -5 -5/2 एंड हमारे पास फिर ये क्या आ जाएगा इसका आंसर. आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में लिखने तो ज़्यादा इजी है क्योंकि इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आर ऑफ 0 एंड यहाँ पर आंसर मेरा आ जाता है -5/2 भी कर सकते हैं एंड -2.5. बोथ आर करेक्ट. ओके, बोथ आर करेक्ट. आपने ये नहीं करना कि हम इसको मस्त डेसिमल में कन्वर्ट कर दें या इसको फ्रैक्शन. बुक में देख लीजिएगा, बुक में आई थिंक दे हैव गिवन यू इट्स डेसिमल फॉर्म दैट इज़ -2.5. आई थिंक दे हैव गिवन. तो वो भी आपका आंसर करेक्ट है. सो दिस वाज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1. आई होप स्टूडेंट्स derivation of midpoint formula and its questions related to this midpoint formula is clear to you. ठीक है. So okay, take care students. Allah Hafiz.